ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदकस्य स्वीद्धनं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपाव्रेणो सत्यधर्माय दृष्टये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। My humble felicitations to all the vivacious, dynamic and Promethean students enthroned here at Gujarat Medical Education and Research Society. Exuberance and vivaciousness is conspicuously sprinkling from your inquisitive countenance. Preeminently, vivaciously and vigorously, I would cherish to extol my unambivalent, unambiguous and bona fide gratitude to Dr. Rajiv Deveshwar, the Dean here at Gujarat Medical Education Research Society, and Dr. Bipin Bhai Prajapati, the Assistant Dean here, and Dr. Moin Sheth, the Professor at TB Department. I am well acquainted with Dr. Rajiv Deveshwar for almost a decade now, and he is a man brimming with simplicity, humility, and gorgeousness. For a few days, Dr. Rajiv Deveshwarji humbly requested me if I could address the students here at Gujarat Medical Education and Research Society. Dr. Rajiv Deveshwar, his cerebrum reverberates with immaculacy, impeccability, and irreproachability. Today I would like to propound about one of the fundamental topics that is blisteringly consequential in today's super-modern contemporary world. Hence, today we would very meticulously, scrupulously, compendiously, comprehensively, prudently, scientifically, and yet spiritually discuss about it. Are you guys ready for it? Okay. Initially, I would like to elucidate and delineate the significance of this human body. अब हम हिंदी में बात करेंगे, चिंता मत करना। I was baffled by the people looking at me very blisteringly. So we'll discuss in Hindi, okay? सबसे प्रथम हम इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता के विषय में बात करेंगे। भगवान ने हमें ये जो बेशकीमती मनुष्य शरीर दिया है, वो हमें 84 लाख योनि में भटक कर फिर एक बार हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 84,000 स्पीसीज, आई एम टॉकिंग अबाउट 84 लाख। 84 लाख योनि में भटक कर फिर हमें एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। इफ आई टॉक वेरी साइंटिफिकली, रिसर्च डन इन यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम्स दैट the cost of this dead human body, I'm not talking about this life of human body, I'm talking about dead human body. The cost of the dead human body is $5 trillion US. It's not 5 million, it's not 5 billion, it is 5 trillion US dollars. ये एक ऐसे शरीर की हम बात करता है that has no feelings, no emotions, a body that cannot walk, that cannot talk, a body that cannot think, that cannot contemplate and ruminate. ऐसे निर्जीव मानव शरीर की कीमत कितनी है? 5 ट्रिलियन US डॉलर्स। आप यकीन कीजिए, उसमें भी if you look at it, if you were to live approximately 75 to 80 years,
तो आपकी 1 सेकंड की कीमत होगी 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपीस फॉर ईच सेकंड। एंड इफ यू लुक एट ईच एंड एवरी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी दोनों आंखों की ओर देखेंगे, दोनों हाथ, दोनों पैर, फेफड़े, लंग्स, किडनीज, हार्ट, each organ is extremely exorbitant, right? यदि आप अंदाजन 75 साल जिएंगे तो your normal heart would circulate approximately 50 million liters of blood, which is 5 crore liters of blood. इतना बेशकीमती हृदय हमें भगवान ने दिया है, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, even if you go to the market and buy an electronic gadget, it comes with an user manual, right? If you were to buy iPhone 15 Pro Max, it comes with an user manual. How can you utilize that gadget very efficaciously and very scrupulously, right? मान लीजिए कि आप घर पे पढ़ते थे और a dog was chasing you, तो आप क्या उस कुत्ते को भगाने के लिए अपने 1.5 लाख का iPhone 15 Pro Max would you throw at the dog? कुत्ते को भगाने के लिए आप आईफोन का घा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सिमिलरली भगवान ने हमें जो ये बेशकीमती मनुष्य शरीर दिया है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। वी शुड यूटिलाइज दिस ह्यूमन बॉडी वेरी एफिकेशियसली टू अचीव अवर गोल एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आप मान लीजिए कि भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर न दिया होता तो क्या होता। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि भगवान ने हमें इस शरीर की भेंट दी है तो हम इसका सदुपयोग करें, भगवान की प्रसन्नता हो इस तरीके से हमें इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। और हमें इस शरीर का इस तरीके से उपयोग करना चाहिए कि हम हमारे लक्ष्य में सफलता का कदम छू सके। इसलिए इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, लिसन, सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस. You have to work hard. Hard work is the only option you have if you want to be successful in life. इसलिए आज मैं आपको, आज के इस प्रवचन में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स साझा करना चाहूँगा, कुछ रियल एग्जाम्पल्स साझा करना चाहूँगा जो आपको आपकी जहन में ये ज्ञात हो कि हार्ड वर्क हमें कैसा करना चाहिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हार्ड वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट merely हार्ड वर्क. You cannot achieve success in your life if you are merely working hard. If you want to achieve success in your life, you need to consistently hard work, right? I'm adding the word consistent hard work. If you are merely working hard, you will never be successful in life. Before I attended the lecture today, आज हमें एक लड़का मिला था, शायद यहाँ पर बैठा ही होगा। वो मुझे पूछ रहा था कि स्वामी जी, मैं बहुत सालों से कड़ी मेहनत करता हूँ, I'm working hard since many years, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तो मैंने उसको पूछा कि आर यू कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड? तो उसने बोला कि स्वामी जी कभी कभार कंसिस्टेंट हो जाता है, कभी कभार दिनों तक छुट्टियां हो जाती है। सो इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, योर हार्ड वर्क मस्ट बी वेरी कंसिस्टेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग सम पीपल स्मार्टली वर्क हार्ड एंड सम पीपल हार्डली वर्क स्मार्ट. You need to figure out which category do you fall. Smartly work hard versus hardly work smart. There is a major difference between these two sentences, right? इसलिए आपको स्मार्टली वर्क हार्ड करना होगा यदि आपको जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना है. देखिए, एक मंदिर था, तो मंदिर में रात को 12 बजे कोई एक व्यक्ति बिलख रहा था. Someone was crying in the temple. तो मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी, मूर्ति ने सोचा कि अरे रात को 12 बजे मंदिर में कौन रो रहा है, Who is crying in the temple? तो मूर्ति ने पूरी जांच की, तो मूर्ति को मालूम पड़ा कि मंदिर की जो सीढ़ियां थी, मंदिर के जो सोपान थे, वो बिलख रहे थे, वो विलाप करते थे. तो मूर्ति मंदिर के सोपान के पास जाती है और मंदिर की जो सीढ़ियां होती है उनको मूर्ति पूछती है, आप क्यों रोते हो, आप क्यों बिलख रहे हो. फिर मूर्ति ने उनको तसल्ली दी, सांत्वना दी, और फिर मंदिर की जो सीढ़ियां थी वो बता रही है कि आज से 25 साल पहले हमारी और आपकी खुदाई एक ही दिन हुई थी. माने पत्थर को निकालते ना मूर्ति बनाने के लिए, तो 2 पत्थर को सिलेक्ट किया गया था और उसमें से जो आज जो सीढ़ियां है उनका सिलेक्शन किया गया था शिल्पकार ने मूर्ति बनाने के लिए. बिकॉज जो पत्थर था, जो अभी जो सीढ़ियां है
दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द स्टोन, आज जो मूर्ति है। तो उनका सिलेक्शन किया गया मूर्ति बनाने के लिए। तो शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए सब तैयार करते हैं और छीनी और हथौड़ा लेकर तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही हथौड़ा मारते हैं तो वो पत्थर कहता है कि आई कैन नॉट बेयर द पेन। शिल्पकार ने कहा तो थोड़े समय के लिए इस पेन को, इस दर्द को पाल ले, मैं तुझे मूर्ति बना लूंगा। लेकिन वो पत्थर कहता है कि मुझसे ये वेदना सही नहीं जाती। शिल्पकार दोबारा कहता है कि मैं आपको पत्थर में से मूर्ति बना लूंगा, आप थोड़ी देर के लिए इस पेन को सहन कर लीजिए। लेकिन पत्थर कहता है कि मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जाती। फिर शिल्पकार जो दूसरा पत्थर था, विच वॉज नॉट इवन स्ट्रॉन्गर देन द स्टोन दैट वॉज ओवर देयर, जो दूसरा पत्थर था उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको हथौड़ा मार मार कर धीरे धीरे मूर्ति बना देते हैं। और आज वो भगवान के मंदिर में मूर्ति बनकर पूज रहे हैं। फिर वो जो सीढ़ियां थी वो बता रहे कि देखिए रोज हर दिन लोग मंदिर में आते हैं, मुझ पर अपना पैर रगड़ कर चले जाते हैं और आपको तो हर दिन लोग हार पहनाते हैं, वनमाला पहनाते हैं, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है। तब ये मूर्ति ने एग्जाम्पल दिया कि जिस दिन हमारी खुदाई हुई थी तब आप पेन को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे और मैं पेन सहन करने के लिए तैयार था, इसलिए आज मैं मूर्ति बन गया हूं और आप मंदिर की सीढ़ियां। इसलिए यदि आपको अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो आपको हार्डवर्क करना ही होगा। यू माइट बी थिंकिंग कि आज चलिए अमेज़न प्राइम पर मूवीज देख लेते हैं, हैरी पॉटर फिक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए ये सब अनाप शनाप पढ़ने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हैरी पॉटर पढ़ने से ये मिल जाएगा, अमेज़न प्राइम पर ये देख के ये मिल जाएगा। आप पूरी जिंदगी ऐसी गंदगी चाटते रहते हो और आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। और ये जितने भी दो कौड़ी के जितने भी सेलिब्रिटीज है, ये अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहते हैं। उनको जितना कपड़े निकालेंगे उतना और पैसा दिया जाएगा और हम लोग बेवकूफ बनकर अपने आप को खुशकिस्मत समझकर ये सब देखते रहते हैं। उनको पैसे मिलते रहते हैं और आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती रहती है। इससे आपको मिलता क्या है? इसलिए यदि आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो हार्ड वर्क के अतिरिक्त आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए आप ये सोचेंगे कि मुझे घर से बाहर जाना है, लेकिन सभी लाइट्स ग्रीन हो जाएगी ना फिर मैं घर से बाहर निकलूंगा, कभी ये मुमकिन हो पाएगा? आप सोचेंगे कि भैया ड्राइवर को बोल देंगे कि जब सब लाइट्स ग्रीन हो जाए तब मैं घर से बाहर निकलूंगा। दिस इज नेवर पॉसिबल। यदि आपको घर के बाहर जाना है तो कोई ग्रीन लाइट्स मिलेगी, कोई आपको रेड लाइट्स मिलेगी, कभी कभार रोड पे खड्डे आ जाएंगे, उन सभी का सामना करके ही आपको आगे जाना है। आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में किसी भी किस्म का ऑब्स्टेकल्स नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में किसी भी किस्म का इम्पेडिमेंट्स नहीं आना चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यदि आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो चुनौतियों का सामना करके ही जाना होगा। एक किसान था, शायद इसमें से अक्सर लोगों ने किसी भी किस्म का फार्मिंग का अनुभव नहीं होगा, लेकिन शायद आपके बुजुर्गों ने किसी भी किस्म की फार्मिंग की होगी तो आपको मालूम होगा। एक किसान था, वो भगवान से शिकायत करता था, कहता है कि भगवान जब भी हमें बारिश चाहिए तब आप अकाल करते हैं, जब हमें बारिश चाहिए तब बारिश ही नहीं आती, और जब बारिश नहीं चाहिए जब बाढ़ आ जाती है, अतिवृष्टि आ जाती है, जब हमें धूप चाहिए तब आप छाव देते हैं, जब हमें छाव चाहिए तब आप धूप देते हैं, जब हमें गर्मी चाहिए तब आप हाड़ कंपाती सर्दी देते हैं, और जब हमें ठंड चाहिए तब आप गर्मी देते हैं। इसलिए हमारी फसल अच्छी तरह से पैदा नहीं हो सकती। तो वो किसान भगवान से झगड़ा करता है और भगवान से कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे थोड़े समय के लिए आप भगवान बना दीजिए। भगवान ने कहा, अरे भैया लल्लू लाल, तू ये सोचना बंद कर दे, मैं जो करता हूँ वो वाकई अच्छाई के लिए ही करता हूँ। तो इस लल्लू लाल को ये समझ में नहीं आ रहा था, उसने भगवान से जिद ले ली। तो भगवान ने कहा, चल भैया अब तू ड्राइविंग सीट पर बैठ जा। तो भगवान उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं और ये लल्लू लाल अब पूरी सृष्टि का सब मेंटेन करने लगता है। तो जब उसने फसल उगाई तो फसल को जितना पानी चाहिए उतनी मात्रा में ही पानी देता था, जितना धूप चाहिए उतना ही धूप, जितनी छाव चाहिए उतनी ही छाव, जितनी बारिश चाहिए उतनी ही बारिश, जितना फॉग चाहिए उतना फॉग, सब फसल को चाहिए इतना ही मेंटेन्ड एनवायरनमेंट को उन्होंने फसल को पैदा किया। फिर कई 6 महीनों के बाद जब फसल को
लेने का समय आ गया तो वो भगवान से कहता है अब आप इस बार देखना मेरी फसल ऐसी आएगी, आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी फसल नहीं होगी। भगवान ने कहा चल देख लेते हैं भैया। तो फसल को काटने का समय आ गया और फिर फसल को काट के जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें से एक भी दाना गेहूं का नहीं निकला, एक भी दाना गेहूं का नहीं निकला। तो वो किसान सोचता है अरे ये कैसे हुआ, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। फिर भगवान बोलते हैं देखिए जब तुझे इस पौधों को चुनौतियां देनी थी तब तूने किसी भी किस्म की चुनौतियां नहीं दिया। जब उनको तेज बारिश में चुनौतियों सहन करने का अवसर देना था तब तूने उसको तेज बारिश में आना ही नहीं दिया। जब तुझे उसको तेज धूप में डालना था उस पौधे को पकाने के लिए तूने तेज धूप आना ही नहीं दिया। जब तुझे तेज बाढ़ आनी चाहिए तब बाढ़ भी नहीं आई। तूने किसी भी किस्म की चुनौतियां इस फसल को आने नहीं दी। इसलिए परिणाम स्वरूप यही हुआ कि किसी भी प्रकार का अंकुर पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। तितली की कहानी शायद इसमें से अक्सर लोगों ने सुनी होगी। जब तितली छोटी सी थी और कोकून से बाहर निकलना चाहती थी तो किसी एक व्यक्ति, शायद इसमें से किसी एक व्यक्ति, कहाँ पे वो ऋषि भगत जैसे कोई होंगे और बड़े ही गौर से उसका दीदार करते थे। तो वो तितली बहुत प्रयत्न के पश्चात भी कोकून के वो खड्डे में से बाहर नहीं निकल रही थी। तो ये किसी ने सोचा कि मैं उसको बाहर निकाल दूं। तितली बहुत ही प्रयत्न करती है, बहुत ही मशक्कत करती है, फिर भी द बटरफ्लाई इज नॉट एबल टू कम आउट। तो किसी ने सोचा कि अब मैं उसको बाहर निकाल कर उसको मदद कर लूं। तो वो तितली को बाहर निकालने के लिए कोकून का जो छेद था उसमें कैंची लेकर वो छेद को बड़ा कर देता है और तितली और बटरफ्लाई को तुरंत बाहर निकाल देता है। बटरफ्लाई जैसे ही बाहर आती है तितली तो उसके दोनों विंग्स थे वो पैरालाइज थे। तितली का शरीर भी सूजा हुआ था, पंखों बहुत सूखी हुई थी। तो इस बंदे ने सोचा कि अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मदद की है तो लेट मी वेट फॉर सम टाइम। तो वो सोचता है कि थोड़े समय के लिए मैं वेट कर लूं। फिर भी तितली उड़ नहीं सकती है। फिर वो अपने बुजुर्गों के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी सुनाता है और उतनी देर में वो तितली मर जाती है। फिर उसके बुजुर्ग इस भैया को बताते हैं कि भगवान ने तितली को कोकून में से बाहर निकालने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया रची है जिसके जरिए जैसे ही तितली कोकून के संघर्ष में से बाहर निकलेगी वो तुरंत ही उड़ना सीख जाएगी। लेकिन तूने तितली को उस कोकून में से अपने आप में संघर्ष नहीं करना दिया और तूने ही बाहर निकाल दिया, इसलिए तितली उड़ नहीं सकती और तितली उड़ नहीं सकती और फिर मर गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपकी जिंदगी में संघर्ष आएंगे तब आप उस संघर्षों को झेलने की वजह यदि हताश होकर या फिर सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे या फिर उससे भागने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। इसलिए यदि आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, आई एम रिपीटिंग दिस न्यूमरस टाइम्स, यू नीड टू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड। मान लीजिए कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जब उन्होंने शुरुआत के दायरे में क्रिकेट खेलना प्रैक्टिस शुरू की होगी तब 2 महीने तक उनको किसी भी किस्म की सफलता नहीं मिली होती और उन्होंने सोचा नाउ आई शुड एक्सप्लोर फुटबॉल। तो क्या वो दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से बन सकते हैं? मान लीजिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ने सोचा कि फुटबॉल में अब 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब सफलता नहीं मिलती तो लेट अस एक्सप्लोर क्रिकेट। तो क्रिकेट एक्सप्लोर करने जाते तो वो दुनिया के महानतम फुटबॉलर में से एक बन पाते? कभी नहीं बन पाते। मान लीजिए कि जाकिर हुसैन तबला की प्रैक्टिस करने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती और वो कहता है अब लेट मी एक्सप्लोर पियानो। वो क्या पियानिस्ट बन पाते? अच्छा नहीं बन पाते। अमिताभ बच्चन मान लीजिए उन्होंने सोचा कि अब मेरी 3-4 फिल्म सब फ्लॉप जाती है तो अब मुझे हॉकी खेलने के लिए जाना होगा। तो क्या वो हॉकी में सफलता हासिल कर पाते? नहीं कर पाते। मान लीजिए कि मीराबाई और नरसिंहबाई, उनको भगवान की भक्ति करते वक्त बहुत ही किल्लतें आती है, बहुत ही कठिनाई आती है और वो सोचेंगे कि अब भगवान की भक्ति नहीं करना, भगवान को मानना नहीं, तो क्या भगवान उनको दर्शन देते? कभी नहीं दे पाते। इसलिए आपका जो कुछ भी गोल हो
जो कुछ भी लक्ष्य हो उसमें कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना ही होगा। शुरुआत के दायरे में मान लीजिए कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना ही होगा। अफ्रीका के जंगल्स के विषय में देयर इज ए प्रोवर्ब फॉर द डियर्स एंड द लायंस इन द अफ्रीका। कहा गया है कि अफ्रीका के जंगल में द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन minimum faster than the fastest lion to see the evening in the jungles, and the slowest lion has to run minimum faster than the slowest deer in the jungle to see the evening. वरना शेर जंगल का राजा है फिर भी वो भूखा मरेगा और हिरन भी मर जाएगा। So the essence is whether आप जंगल के राजा हो या हिरन हो, आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। Whether if you are coming from affluent family or poor family, if you are an affluent or destitute, if you are male or female, if you are an illiterate or erudite, you need to consistently work hard. मान लीजिए कि आप हर दिन 2 बार ब्रश करते हैं, right? You might be brushing your teeth twice a day for a year, and the second sentence is brushing teeth twice a day in a year. There is a major difference, right? Brushing your teeth twice a day for a year and brushing your teeth twice a day in a year. क्या हाल होगी यदि आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं लेकिन साल में 1 ही बार? क्या दुर्दशा होगी आपके दांतों की। इसलिए यदि आपको अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो दिन में 2 बार लगातार करेंगे, तभी दांत स्वस्थ रहेंगे। वैसे ही लगातार हमें भी हमारे लक्ष्य के लिए मेहनत करनी ही होगी। हेनरी फोर्ड का नाम कितने लोगों ने सुना है इसमें से? Most of you might be cognizant with his name, right? हेनरी फोर्ड, जब उन्होंने फोर्ड कार की रचना की थी तो फिर उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बताया कि मुझे ऐसा इंजन चाहिए कि 8 सिलेंडर्स एक ही कार में हो। 8 सिलेंडर्स। तो इंजीनियर्स को वो कहते हैं, फिर इंजीनियर्स 8 सिलेंडर्स एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, निष्फलता मिलती है। 2 साल मेहनत करते हैं, निष्फलता मिलती है। 2 साल के बाद वो इंजीनियर्स हेनरी फोर्ड के पास आते हैं, कहता है सर दिस इज इम्पॉसिबल। हेनरी फोर्ड करता है फिर भी ट्राई कीजिए, और 2 साल मेहनत करते हैं, 4-5 साल लग जाते हैं, फिर भी एक साथ 8 सिलेंडर्स एकजुट नहीं कर पाते। तीसरी मर्तबा हेनरी फोर्ड के पास आते हैं। अब हेनरी फोर्ड ऐसा कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट आई नीड 8 सिलेंडर्स इन 1 कार। फिर प्रयत्न करते हैं, फिर सफलता मिलती है। इसलिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क के बिना आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, उसका कोई आपके पास विकल्प ही नहीं है। आप में से कितने लोगों ने अमेज़न रिवर का नाम सुना है? अमेज़न इज द बिगेस्ट and the largest river in the entire world, right? Most of you might be acquainted. I'm not talking about Nile River, okay? Nile River is the longest river in the world, but Amazon River is the biggest and the largest river in the world. आप जानते हैं कि Amazon River दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे बन गई? Amazon नदी का जो उद्गम स्थान है वो एक पर्वत है, और एक पर्वत के मुंह में से Amazon नदी निकलती है। आप जानते हैं कैसे निकलती है? एक बूंद गिरता है, फिर 8 सेकंड के बाद दूसरा बूंद निकलता है। सो द डिफरेंस बिटवीन 1 ड्रॉप एंड द सेकंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकंड ड्रॉप, द डिफरेंस इज 8 सेकंड्स। तीसरा बूंद गिरता है 8 सेकंड के बाद, चौथा बूंद गिरता है 8 सेकंड के बाद। आप मानिए कि आपको स्नान करना है और बाल्टी आपने रखी है और 8-8 सेकंड पर एक ड्रॉप गिरेगा, तो आप स्नान कर पाएंगे? तो ये अमेज़न नदी पिछले लगातार कई सालों से एक एक ड्रॉप गिर गिर कर दुनिया की महान और सबसे बड़ी नदी बन गई। जानते हैं इसकी वजह, इसका सबब आप जानते हैं? बिकॉज इट इज कंसिस्टेंटली फॉलिंग सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट? पिछले हजारों सालों से भले ही एक बूंद गिरता है लेकिन लगातार गिरता है, इसलिए अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई। आप ये सोचेंगे कि एक बूंद गिरता रहेगा, एक बूंद गिरता रहेगा, तो बाल्टी भी कब आप भर पाएंगे? लेकिन एक बूंद लगातार गिरता है तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई। इसलिए आप ये मत सोचना कि इतनी मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। इफ यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग, इफ यू डेवलप ए हैबिट
जस्ट फॉर ए मिनट थ्रू आउट योर डे, आप 1 मिनट हर आदत के लिए देंगे एक दिन, तो आप धीरे धीरे महान बन जाएंगे। लेकिन हम सोचते क्या है मालूम है, ये थोड़े दिन मेहनत कर ली, फिर ब्रेक ले ली, फिर ब्रेक ले ली, फिर मेहनत की, फिर ब्रेक ले ली। कंसिस्टेंसी हमारी हैबिट्स में नहीं है। देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, आप बुरा मत मानना, इस क्लासरूम में भी 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक नेचुरली स्मार्ट होंगे, माने एक बार पढ़ लिया और याद रह जाएगा। हम भी जब वहां पे यूएस में थे, शिकागो में, तो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हमें देखे। हमारे कई फ्रेंड्स थे, वो एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक बार देख लिया पूरा किताब याद रह गया, लेकिन 1 साल 2 साल अच्छे ग्रेड्स आते थे, तीसरी साल फिर कमाने लगे। हमने सोचा ऐसा होता क्यों है उनके जीवन में, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंटली वर्किंग हार्ड। उन्होंने ये सोच लिया कि अच्छे ग्रेड्स आते हैं, हम तो नेचुरली स्मार्ट है, फिर मूवीज देखने चले जाते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चले जाते थे, इसलिए कभी भी सफलता नहीं है। और दूसरे लड़के ऐसे होते हैं जो नेचुरली स्मार्ट नहीं होते, लेकिन दे आर विलिंग टू पुट द एंटायर एफर्ट दे नीड टू सक्सीड इन देयर लाइफ, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं। ऑल्दो दे माइट नॉट बी नेचुरली इंजीनियस, दे माइट नॉट बी नेचुरली इंटेलिजेंट, बट दे आर विलिंग टू पुट द एफर्ट दे नीड टू। तो आप देखेंगे ऐसे लोग ही जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे कई मित्र हैं जो नेचुरली स्मार्ट थे, और आज हम पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो किसी के नीचे जॉब करते हैं। मैंने सोचा कि भैया आप इतने स्मार्ट थे, अब आप 50,000 की जॉब करते हैं, 20,000 की जॉब करते हैं, आपका सब इंटेलिजेंस कहाँ पे चला गया? वो कहते हैं स्वामी जी हार्ड वर्क करना नहीं आता था। इंटेलिजेंस तो भगवान ने दिया था, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करना था। इसलिए यदि आपको सक्सेसफुल आजीवन बने रहना है, तो हार्ड वर्क के अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए आजकल आप लोगों ने बैटमैन की बहुत कहानियां सुनी होगी, स्पाइडरमैन की दंत कथाएं भी बहुत सुनी होगी। ये सब कहानी सुनकर कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको 2 ऐसे मैन की कहानी सुनाना चाहता हूं जो वाकई आपको संघर्ष और परिश्रम की मिसाल साबित करेंगे। द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ यू माइट बी एक्विंटेड, लेकिन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि हार्डवर्क कैसा किया जाता है। दशरथ मान जी का नाम तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट? ही इज कंसिडर्ड एज द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। दशरथ मान जी जब हर दिन पर्वत पर जाते थे काम करने के लिए, तो उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेके जाती थी। तो एक दिन उनकी पत्नी जब पानी लेके जाती थी, तो वो उनका पैर फिसल गया और शी फेल डाउन। तो दशरथ मान जी सोच रहे कि उनकी पत्नी कहाँ पे चली गई। फिर उनको मालूम पड़ता है कि वो शी फेल डाउन। तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए उन्होंने सब अख्तियार कर लिया, और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उस वक्त एक बड़ा सा पर्वत था जिस पर दशरथ मान जी काम करते थे। तो एक गांव में से दूसरे गांव में जाने के लिए उनको 55 किलोमीटर क्रॉस करके जाना था, और वो भी बहुत ही पर्वत वाला रास्ता था। सो इट यूज्ड टू टेक 2 to 3 आवर्स, और रास्ते में ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका। इस घटना के बाद दशरथ मान जी ने सोच लिया कि मेरे जैसे किसी दूसरे के जीवन में ऐसी दुर्घटना न हो, इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि मैं पर्वत के बीच में से रास्ता निकालूंगा। जब उन्होंने इस बात की तो लोग उनका परिहास करते थे। दशरथ मान जी ने कहा कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। लोग उनके इस वाक्य पर परिहास करते थे, अरे अकेला इंसान कैसे कर सकता है। उनके पास किसी भी किस्म की मशीनरीज नहीं थी, अकेला हथौड़ा लेकर जाते थे, और 22 सालों तक लगातार उन्होंने हर दिन मेहनत की, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। He worked consistently for 22 years, और 22 सालों के बाद उन्होंने 360 फुट का रास्ता बना दिया, पर्वत को चीर कर अकेले इंसान ने बना दिया। क्या था इनकी सफलता का राज? क्या था? कंसिस्टेंट हार्डवर्क। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्डवर्क, ओके? आजकल ऐसे कई मोटिवेटर्स है, कई इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स है जो हार्डवर्क की बहुत बात करते हैं। देखिए हार्डवर्क करने से कुछ नहीं मिलता भैया। मैं आपको वाकई बता दूं, 99% लोग जो हार्डवर्क करते हैं वो फेल ही होते हैं, जब तक उनके हार्डवर्क के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती, जब तक उनके हार्डवर्क के अंदर स्मार्टनेस नहीं आती, तब तक आपका हार्डवर्क किसी भी किस्म का नहीं है, किसी भी प्रकार की सफलता आपको नहीं देगी। दशरथ मान जी ने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया, इसीलिए उन्होंने 360 फुट का रास्ता बना सके। पहले एक गांव में से दूसरे गांव में जाने के लिए 55 किलोमीटर होते थे, और उनके उस रास्ते बनाने के बाद इट वॉज merely 15 kilometers because he worked consistently hard.
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, क्या नाम था उनका? जादव मोलाई पयंग, राइट। जब 1979 के अंदर असम के अंदर जब भयंकर बाढ़ आई तो वहां की जो द्वीप की जो जमीन थी वो खस्ता हो चुकी थी, इसलिए वहां के जितने भी पशु पंखी थे वो मरने लगे थे, द एनिमल्स वर डाइंग। फिर उन्होंने किसी बुजुर्ग को पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो बुजुर्गों ने ये बताया कि यहाँ पर जंगल की मात्रा कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ ए सीवियर एंड ब्लिस्टरिंग डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर जितने भी पशु पंखी है वो मरने जा रहे हैं। फिर इन्होंने जादव मोलाई पयंग ने ये ठान लिया कि मैं यहाँ पर जंगल बनाऊंगा। तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी, वॉज ओनली 16 years old। इन द ईयर 1979 उन्होंने इस काम को शुरू किया। और ये जो कहावत है ना, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इस कहावत को उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने काम शुरू किया एंड यू विल बी flabbergasted to hearken, he used to wake up at 3 a.m. in the morning, 3 a.m. in the morning, at 5 a.m. he used to cross, वो नदी को क्रॉस करके सामने वाले द्वीप पर जाते थे और 2 घंटे चलकर एक दिन एक वृक्ष को उगाते थे। वो एक दिन एक वृक्ष को 3 बजे उठ जाते थे, 5 बजे रिवर को क्रॉस करके द्वीप में जाते थे, 2 घंटे चलकर फिर एक वृक्ष उगाते थे। उनका ये सिलसिला और ये तरतीब 42 सालों तक जारी रहा। 42 सालों तक उनका ये तरतीब और ये सिलसिला जारी रहा और 42 सालों के बाद उन्होंने एक ऐसा जंगल अख्तियार कर लिया, 1360 एकड़ रेगिस्तान को उन्होंने हरे भरे जंगल में तब्दील कर लिया। 15 फुटबॉल मैदानों के आकार का एक जंगल उन्होंने अख्तियार कर लिया अकेले इंसान ने। क्या था उनके पास? कंसिस्टेंस। क्या था? हार्डवर्क नहीं, क्या था? कंसिस्टेंट हार्डवर्क उनके पास था, इसीलिए वो इस काम को कर पाए। इसलिए यदि आपको भी जिंदगी में तरक्की को हासिल करना है तो आपको इसको अपनाना ही होगा अपने जीवन में। आप में से कितने लोगों ने शबरी बाई का नाम सुना है? रामायण में इसकी बहुत ही सुंदर कथा आती है, राइट। शबरी बाई को उनके गुरु महर्षि मतंग ने यह बताया था कि एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर भगवान श्री राम दस्तक देंगे, बताया था ना। शबरी बाई ने ये नहीं पूछा गुरुदेव कब वो मुझे दर्शन देंगे, उनके गुरु ने भी उनको ये नहीं बताया था कि तुझे किस दिन, किस साल, कौन से महीने, कितनी तपस्या करने के बाद तुझे भगवान श्री राम मिलेंगे। नो क्लैरिफिकेशंस वेर मेड। लेकिन शबरी बाई को अपने गुरु पर अटूट विश्वास था। उन्होंने ये प्रयास शुरू किया और हर दिन वो 4 काम करती थी। एवरी डे 4 काम वो करती थी। पहले सड़क को साफ करना, फिर सड़क पर फूल बिछाना, फिर आरती की तैयारी करना और फिर फल और फ्रूट्स की तैयारी करना भगवान के लिए। हर दिन ये 4 काम वो करती थी उसी भावना से कि एक दिन भगवान मेरे पास आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। अब तो सोचेंगे कि भगवान ने दर्शन दिया होगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल बीत गए और फिर एक दिन उनको दूर से 2 बंदे आते हुए देखते हैं और उनको ये ज्ञात हो गया कि ये मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे। और जैसे ही प्रभु आते हैं वो इतने एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि वो भूल जाती है और वो झूठे बैर भगवान को खिला देते, क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंट हार्डवर्क का इतना एक्साइटमेंट भरा हुआ था। उन्होंने प्रभु श्री राम को झूठे बैर खिला दिए। क्या था इसका सबब? शी कंसिस्टेंटली वेटेड फॉर लॉर्ड श्री राम सिंस पास्ट 40 years। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा गुरुदेव को, महर्षि मतंग ने उनको जो कहा था ना कि भगवान श्री राम आपको दर्शन देंगे, कभी भी उन्होंने ये डाउट नहीं किया कि कब मुझे भगवान दर्शन देंगे। उनकी जिम्मेदारी एक ही थी, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा न संगस्तु कर्मणि। अपने कर्म पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और भगवान ने एक दिन उनको ये फल दिया। इसलिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क के अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड। आप में से राजा भगीरथ का नाम कितने लोगों ने सुना है? सभी ने सुना होगा, राइट। आप लोग हैरी पॉटर की कहानी सुनते हो तो कभी कभार भगीरथ महाराज का भी दर्शन करना चाहिए, कभी कभी उनका भी जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। हैरी पॉटर पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, गंदगी चाटते रहेंगे और निकालते रहेंगे। इसलिए महाराज भगीरथ, शबरी माता, श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, शिक्षापत्री, वचनामृत,
ऐसे लीला चरित्रों, भगवान के ज्ञानार्थक ग्रंथों का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। तो महाराज भगीरथ की ये बखूबी कहानी ये आती है कि महाराज भगीरथ को किसी ने बताया था कि यदि आपको अपने पूर्वजों का कल्याण करना है तो माँ गंगा इस पृथ्वी पर आनी चाहिए। तब भगीरथ पूछते हैं कि ये कैसे किया जाता है। उनको किसी ने बताया कि आपको तपश्चर्या करनी होगी। तो तपश्चर्या शुरू कर देते हैं। 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल नहीं, हजारों साल तक वो तपश्चर्या करते हैं। और हजारों साल के बाद गंगा मैया उनको दर्शन देते हैं और गंगा मैया के आगे वो अपनी याचना रखते हैं और कहते हैं कि माँ आप पृथ्वी पर आइए। तब गंगा मैया ने बताया कि मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटे मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे भार से मेरा प्रवाह इतना तेज होगा कि पूरी पृथ्वी इसमें डूब जाएगी। तो फिर भगीरथ ने उदास निगाहों से माँ गंगा को पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब माँ गंगा है उनको ये सलूशन बताते हैं कि आप भगवान नीलकंठ की आराधना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, और यदि शिव जी आप पर प्रसन्न हो गए तो वो उनकी जटाओं में से मेरे प्रवाह को झेल पाएंगे। तब भगीरथ हजारों साल तपश्चर्या करने के पश्चात he goes one more time और भगवान नीलकंठ की आराधना करते हैं। हजारों साल तक आराधना करते हैं, फिर भी भगवान शिव जी उनको दर्शन नहीं देते। फिर उन्होंने एक अंगूठे के बल पर तपश्चर्या शुरू कर दी। एक अंगूठे के बल पर हजारों साल बीत गए, फिर भी भगवान शिव जी उनको दर्शन नहीं देते। और भी हजारों साल बीत गए, फिर भगवान शिव जी को किसी ने कहा कि ये आपका भक्त आपके लिए आपके दर्शन का बहुत ही आकांक्षी है, आप कृपया उनको दर्शन दीजिए। फिर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और फिर माँ गंगा पृथ्वी पर आते हैं। क्या था इसका कारण? भगीरथ ने ये नहीं सोचा कि हजारों साल तपश्चर्या कर ली, अब शिव जी को दर्शन नहीं देना है तो अब हमारी तपश्चर्या को समेट कर किसी के साथ शादी कर लेंगे। ऐसा सोचा नहीं था। उन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया और फिर भगवान शिव जी उनको दर्शन देते हैं और फिर माँ गंगा पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए आज भी यदि कोई लगातार मेहनत करे तो हम उसको क्या कहते हैं? भगीरथ प्रयास कहते हैं, राइट। इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं ना हरकुलियन एफर्ट, वैसे हिंदी में हम कहते हैं भगीरथ प्रयास, क्योंकि भगीरथ जी एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क की एक बेमिसाल मिसाल है। इसलिए यदि आपको बार बार मैं इस बात को पुनः इस बात को कंसिस्टेंट हार्डवर्क इस शब्द पर मैं भार देता हूँ। आपको इस प्रवचन में से और कोई भी चीज आप पकड़ नहीं पाए, लेकिन इस एक शब्दों को आप पकड़ना, कंसिस्टेंट हार्डवर्क, आपके जीवन में वाकई सफलता मिलेगी ही। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क का हो। आप में से कितने लोगों ने जेसिका कॉक्स का नाम सुना है? हैव यू हर्ड the name Jessica Cox? None of you, right? Because you guys are busy reading Harry Potter, so I'm sure you guys don't have time to contemplate upon these examples. तो जेसिका कॉक्स शी वॉज इन मिशिगन, अमेरिका में रहती थी। जब वो महज छोटी सी थी तो शी वॉज कॉल्ड एज द आर्मलेस गर्ल, क्योंकि उनको दोनों भुजाएं नहीं थी, दोनों हाथ नहीं थे, तो शी वॉज कॉल्ड एज द आर्मलेस गर्ल। तो जब वो स्कूल में पढ़ाई करती थी तो एक दिन स्कूल में टीचर सबको पूछते थे व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो सबकी बारी आती है, फिर जेसिका की भी बारी आती है। तो टीचर पूछते हैं जेसिका व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप। जेसिका कहती है आई वुड लाइक टू बी ए पायलट। तो क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सब उनका परिहास करने लगे। पीपल वर मॉकिंग एट हर कि ये आर्मलेस गर्ल कैसे पायलट बन सकती है। तो जेसिका ने उनको किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। टीचर ने उनको बताया बेटा तुझे यदि पायलट बनना है तो तू आज से जो भी काम हाथों से किया जाता है उसको अपने पैर के जरिए करना शुरू कर दे। फिर जेसिका वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क शुरू कर देती है। जो भी काम हाथ से होता है वो पैर से शुरू कर दिया और लगातार 20 सालों तक उन्होंने प्रयत्न किया। एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन एट द एज ऑफ 24 शी बिकेम द फर्स्ट पायलट इन द एंटायर वर्ल्ड हु वाज कंसिडर्ड एज द आर्मलेस पायलट। आज भी वो पायलट है और वो विमान चलाती है अपने पैरों के जरिए, हाथों के जरिए नहीं। इफ यू गूगल इट यू कैन रीड हर एंटायर स्टोरी। अपने पैरों के जरिए उन्होंने ये इस कला को सीख ली। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें 2 आंखें दी है ना, 2 हाथ दी है, 2 पैर दी है, लेग्स दिए है ना, हृदय दिया है, फेफड़े दिए है, किडनीज दी है। हमारे पास कौन से अंग की कमी है? सब कुछ है ना, फिर भी हम हमारी आंखों का उपयोग कहाँ पे करते हैं? अगल बगल में इर्द गिर्द में लड़कियों को देखने के लिए। लड़कियों क्या उपयोग करती है? लड़के को देखने के लिए।
ये सब में आपको समय गंवाने के लिए भगवान ने जिंदगी नहीं दी। यदि आपको वो सब चीजें करनी है तो शादी के बाद करना, लेकिन अभी आपकी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए है। किस लिए है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपके अंदर एक अलग सा ओज आ जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि हम सन्यासी इसलिए आपको ये सब बातें करते हैं। भैया हम भी आप जैसे कॉलेज लाइफ में से 25 सालों तक रहकर आए हैं। हम शिकागो में पढ़ते थे, हमने ये सब लाइफ देख के आए हैं। इसलिए यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो ये लड़कियों के चक्कर में पड़ना मत और हार्ड वर्क करना। सही बात है ना? वन मोर टाइम बस। और लड़कियों को भी ये प्रार्थना है कि इस लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, वरना वहां से आपको जैसा धोखा मिलेगा ना, फिर आपको सुसाइड के अतिरिक्त और कोई विचार ही नहीं आएगा। हमारा एक मित्र था, जब हम शिकागो में पढ़ते थे तो हमारा एक मित्र था, उसका नाम था क्रिस। हिज नेम वाज क्रिस। हमारा बहुत ही करीब का, हमारे साथ न्यूरो साइंस में पढ़ता था। तो वो एक दिन आता है, ये ब्रिलियंटली स्मार्ट स्टूडेंट, ओके, आई वुड से 5 times more smarter than me, इतना स्मार्ट था। वहां पर एक ACT की एग्जाम्स आती है जब आप 12th में पढ़ते हैं तो ही स्कोर्ड 36 out of 36 इन ACT एग्जाम्स। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसको 36 परफेक्ट स्कोर आया था। इतना ब्रिलियंट माइंड था। उनको न्यूरोसर्जन बनना था, पढ़ता था। लेकिन एक दिन बहुत ही हताश होकर आता है। मैंने पूछा, भैया क्या हो गया है तुझे? घर में किसी की मृत्यु हो गई है? नहीं भाई। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है? तो कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। मैंने कहा हुआ क्या है? दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेना भैया। लेकिन इतना उदास क्यों हो जाता है? वो कहता है लेकिन वो गर्लफ्रेंड जो मेरी थी उसने किसी दूसरे बंदे के साथ मेरे होते हुए भी अफेयर कर लिया। तो ये सब धोखा, यदि आपको बचना है तो भगवान पर विश्वास रखिए और पढ़ने में ध्यान दीजिए। सही बात है ना? इसलिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क आपको करना है यदि जिंदगी में तरक्की को प्राप्त करना है तो। अब अंत में देखिए, पहले इस प्रवचन के पहले भाग में हमने हार्डवर्क पर भार दिया। अंत में मैं आपको भगवान पर विश्वास रखने की एक बात बताना चाहूंगा, फिर इस प्रवचन को हम समेट लेंगे। ठीक है? आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, प्रीएमिनेंटली इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, भगवान पर अटूट विश्वास रखना। And when I talk about faith in God, I'm not talking about ordinary faith. I'm not talking about mediocre faith. I'm talking about unwavering, unflinching and unyielding faith in God. भगवान पर ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए, अटीग विश्वास होना चाहिए भगवान पर, तभी आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाओगे। It is very significant and very exigent in your life. If you want to unlock your inner potential, you need to have staunch faith in God. देखिए आजकल लोग, people very arrogantly, very pompously and very swaggeringly say that I believe in science and not God. Idiot, sit down. I can give examples of 100 most influential scientists of this millennium who very staunchly and very avidly believed in God. From Albert Einstein to Sir Isaac Newton to Galileo Galilei to APJ Abdul Kalam to Sir Jagdish Chandra Bose, more than 100 scientists who very staunchly believed in God. तो मैं और आप कौन है कि भगवान के अस्तित्व पर शंका करें? इसलिए यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो भगवान पर अटूट विश्वास रखना। देखिए एक बंदा हमारे पास आता है और कहता है कि आपने भगवान का अनुभव नहीं किया तो आप भगवान को कैसे मानते हैं? तो मैं भी विचार में पड़ गया। हमें कहता है कि स्वामी जी आपने भगवान को देखा है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं आपने भगवान को देखा नहीं और भगवान में कैसे बिलीव करते हैं? मैंने कहा लल्लू लाल तुझे अभी ही मैं उत्तर देता हूँ। फिर मैंने उनको पूछा कि जहर पीने से क्या होता है भैया? वो कहते हैं मर जाते हैं। इंस्टेंटेनियसली वो मुझे जवाब देता है कि जहर पीने से मर जाता है। मैंने कहा तूने कभी अनुभव किया है? तू मुझे पूछता है कि भगवान का अनुभव किया है, मैं तुझको पूछता हूँ कि जहर पीने से तू कहता है कि मर जाता है, तूने कभी अनुभव किया है? कहा अनुभव तो नहीं किया। तो लेट्स राइट, मैंने कहा मैं थोड़ा आपको जहर पिला लेता हूँ, फिर तू मर जाएगा, फिर तुझे भगवान का दर्शन कराऊंगा मैं। तो क्या है स्वामी जी ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तू किस आधार पर मानता है कि जहर पीने से व्यक्ति मर जाता है? तो वो कहता है कि हमने ऐसा सुना है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि जहर पीने से व्यक्ति मर जाता है। फिर मैंने उसको कहा कि ये 2 कौड़ी के तेरे जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जहर पीने से व्यक्ति मर जाता है,
तो हमारे बेशकीमती वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वचनामृत ऐसे ग्रंथ हमें कहते हैं भगवान के अस्तित्व के विषय में। तो ये तेरे 2 कौड़ी के विशेषज्ञ पर मैं विश्वास करूं और हमारे जो बेशकीमती ग्रंथ है उन पर मैं विश्वास न करूं? फिर थोड़ा विचार में पड़ जाता है। फिर मैंने कहा कि तेरे जैसे मूर्ख, बेवकूफ, अक्ल के शत्रु यदि भगवान में माने या न माने, इससे भगवान को कोई इम्तियाज नहीं पड़ता। तू यदि भगवान को नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा, और तू यदि भगवान को मानेगा फिर भी ऐसा नहीं है कि भगवान की गरिमा बढ़ जाएगी तेरे भगवान के मानने से। यदि तुझे तेरा कल्याण करना हो, तुझे तेरा श्रेय करना है, तो भगवान में मानने लगे। फिर वो विचार में पड़ जाता है। फिर थोड़े दिन के बाद आता है दूसरा इंसान और कहता है कि ये भगवान का अस्तित्व मुझे लगता नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो फिर कहता है कि भगवान हो तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। मैंने कहा कि तू कहाँ पे रहता है, घर पे रहता है या अपार्टमेंट में रहता है? कहता है कि स्वामी जी पैसे नहीं है तो अपार्टमेंट में रहता हूँ। कौन से मंजिले पर रहता है? कहता है 10वें मंजिले पर रहता हूँ। फिर उसको पूछा गया कि आपके 10वें मंजिले पर पानी कहाँ से आता है? तो वो कहता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से पानी आता है। मैंने कहा अरे अक्ल के शत्रु, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी है वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कहाँ से आता है तेरे घर पे? कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक घर पे नीचे टंकी है, वहां टंकी में पानी आता है, फिर ऊपर एक टंकी है, ऊपर टंकी में पानी जाता है, फिर बाथरूम में पानी आता है, फिर मैं स्नान करता हूँ। मैंने कहा ऊपर टंकी में पानी कहाँ से जाता है? तो कहता है कि स्वामी जी मोटर लगाई हुई है। तो मैंने कहा मोटर लगाने की क्या आवश्यकता है भैया, पानी सीधे ऊपर नहीं जा सकता? तो आप जैसे साइंस का स्टूडेंट है वो बता रहे कि स्वामी जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल डाउन करता है तो मोटर लगानी पड़ती है, इसलिए पानी ऊपर जाता है। फिर उसको बताया गया भैया ये नारियल जो होता है ना, नारियल 50 फीट हाइट की ऊंचाई पर होता है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, तो वाटर शुड कम डाउन राइट। लेकिन नारियल के अंदर, नारियल तो 50 फीट हाइट की ऊंचाई पर होता है, नारियल के अंदर कहां से पानी आ गया भैया? वहां पर किसी भी किस्म की मोटर नहीं लगाई ना, तो वहां नारियल के अंदर कहां से पानी आ जाता है? ये भगवान के अतिरिक्त किसी की भी ताकत नहीं ये कर सके। फिर हमने उसको पूछा भैया तू हर दिन जिम में जाता है ना? हाँ स्वामी जी जिम बना जाता हूँ, 6 एप्स बताता हूँ। उसको सिर्फ 6 एप्स बनाना था, तो हर दिन जिम में जाता है। मैंने कहा जिम जाने के बाद कभी स्वेटिंग होता है या नहीं? हाँ स्वामी बहुत स्वेटिंग होता है। मैंने कहा वो स्वेटिंग पानी बाहर कैसे निकलता है? तो हमें कहता है स्वामी जी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं जिसके जरिए पानी बाहर निकलता है। मैंने कहा तू नहाता है तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता? पानी बाहर आता है लेकिन अंदर क्यों नहीं जाता? कौन सा शटर वहां पे काम करता है भैया? कुछ तो शटर होगा ना जो भगवान ने बनाया होगा। फिर कहता है हाँ स्वामी जी होना चाहिए, शायद भगवान होना चाहिए। फिर हमने कहा उसको देखिए भैया एक ही मिर्च में, एक ही मिट्टी में से, एक ही मिट्टी, एक ही खाद और एक ही पानी, तीनों चीज एक होती है। एक ही मिट्टी, एक ही खाद और एक ही पानी। एक में से शुगर केन बनता है, गन्ना बनता है, और दूसरे में से मिर्च बनता है। ये किसका कर्तृत्व है? भगवान का ही कर्तृत्व है ना। कभी आपने देखा कि सेब के पेड़ पर अंगूर आ जाएंगे, अंगूर के पेड़ पर सेब आ जाएंगे? आम के फल पर आपने देखा कभी भी पपीता आ जाएगा? पपीता के पेड़ पर आपने देखा आम फल आ जाएगा? ये सब किसका कर्तृत्व है? किसी ने बहुत ही बखूबी बताया है। भगवान होने का अस्तित्व, सबसे बड़ा अस्तित्व ये है कि आप किसी भी अखबार को, आप दिव्य भास्कर पढ़ेंगे ऋषि भगत, तो अखबार को आप दूसरी बार नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन भगवान के चरित्र ऐसे है, आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, आपको नया नया रस, नया नया आनंद आता रहेगा। जैसे आप गंगा में डुबकी लगाएंगे ना, तो एक डुबकी और दूसरी डुबकी में एक पानी कभी भी नहीं होगा, दूसरी डुबकी में दूसरा पानी, तीसरी डुबकी में तीसरा पानी। वैसे ही आप जितने भी भगवत चरित्र में अवगाहन करेंगे, हर बार आपको नया आनंद, हर बार नया आनंद। लेकिन आप जितनी बार अखबार पढ़ेंगे, यू आफ्टर रीडिंग इट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यू विल गेट एक्सट्रीमली बोर्ड, राइट? क्योंकि भगवान के चरित्र ही ऐसे है। इसलिए भगवान की जितनी भी अजब शक्ति है उस पर आप जब तक यकीन नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए हम किसी एक जगह पर गए थे और वो साइंटिस्ट सब बैठे थे और ग्रेविटेशनल फोर्स की सब बातें करते थे। तो हमने उनको पूछा भैया व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैन यू एक्सप्लेन मी, यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स राइट, कैन यू टेल मी द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन कहाँ से है?
किसी को मालूम नहीं है, राइट? आपने कभी ऐसा देखा कि इस पृथ्वी पर 2 लोग होंगे या 7 अबज लोग होंगे? कहीं पर आपने देखा कि 2 लोग हुए इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया और उसके पैर ऊपर हो गए? कभी नहीं होगा। आपने ये कभी देखा कि आप अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या भारत में होंगे, सब जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंप्लीटली इक्वल, राइट? आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि अमेरिका में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है इसलिए वहां के लोगों के पैर 2 फुट ऊपर रहते हैं पृथ्वी से। कभी ये देखा आपने? ये भगवान का कर्तृत्व तो आप देखिए। इफ यू गो एट एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स यू विल सी द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भगवान का ही कर्तृत्व है ना। आप मान लीजिए, देखिए कोई लोग हमारे पास, एक दूसरा बंदा जिसका नाम था जॉय, वो हमारे पास आया था, तो वो हमें पूछता था कि स्वामी जी भगवान है तो उसको आपने कभी देखा है? मैंने कहा मैं तो हर दिन भगवान को देखता हूँ। तो वो अचंभित हो गया। मैंने कहा आई सी गॉड 365 डेज थ्रू आउट ए ईयर, 7 डेज ए वीक। तो उसने मुझे बताया कि क्या आप हमें भी भगवान दिखा सकते हैं? मैं क्या जरूर दिखा सकता हूँ। मैंने उसको पूछा कि तू मुझे भगवान का एक लक्षण बता दे, कैन यू गिव मी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड? वो थोड़ा विचार करता है, फिर हमें बताता है कि स्वामी जी भगवान मीनिंग गॉड इज पावर, गॉड इज पावर, एनर्जी। तो मैंने कहा कि तू सूर्य को देखता है ना हर दिन, सूर्य में कितनी एनर्जी है? हमारे ग्रंथों में सूर्य को भी भगवान कहा गया है ना। कैन एनीवन रिप्लेस द पावर ऑफ सन? एक दिन सूर्य ने सोच लिया कि कल मुझे सूर्योदय नहीं करना है, तो इस नासा के जितने भी वैज्ञानिक हैं, इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं, सब एकजुट हो जाए और इस दुनिया में जितनी भी जलाने लायक चीजें हैं, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, लकड़ियां हो, सब एकजुट होकर आप सबको जलाइए, फिर भी आप सुबह कर पाएंगे? सुबह कर पाएंगे? सूर्य ने सोचा कि मुझे कल सूर्योदय नहीं करना है, तो सब साइंटिस्ट एकजुट हो गए, जितनी भी इस दुनिया में जलाने लायक चीज है आप जला लीजिए। कैन यू स्टिल मेक मॉर्निंग? सुबह तो तब ही होगी जब सूर्य 13 लाख किलोमीटर की दूरी से जब सूर्योदय होगा, बाकी अंधकार कभी भी जाएगा। इसीलिए सूर्य का कोई भी रिप्लेसमेंट इस पृथ्वी पर नहीं है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि ऑन द सरफेस ऑफ द सन every second 60,000, I'm talking about 60,000, okay, 60,000 million crores hydrogen gas is being metamorphosed into helium gas to give us light. Let me repeat it. Every second 60,000 million crores hydrogen gas is being metamorphosed into helium gas to give us the light. Can anyone in this universe produce that energy? आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आप हाइड्रोजन को हीलियम में इतनी मात्रा में तब्दील कर दे? किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है। हम क्या भगवान का काम कर सके? लेकिन देखिए आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि दे थिंक दैट द मोर रैशनलिस्ट यू आर, आप जितने भी इनक्विजिटिव है, जितने भी प्रश्न उठाएंगे, आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि सही जगह पर विश्वास रखना वो भी एक बुद्धिमत्ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड बिलीव्स, लेकिन सही जगह पर विश्वास रखना वो भी एक बुद्धिमत्ता है। डोंट क्वेश्चन द फंडामेंटल्स। आप मान लीजिए कि क्रिकेट में आपका चयन हो गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आप सोचेंगे कल से मैं विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेलने जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर वो आपका स्वभाव बहुत ही इंक्विजिटिव और आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए तभी आऊंगा जब आप मुझे बताएंगे कि क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों होते हैं। आप कहेंगे कि भैया पहले मुझे एक्सप्लेन कीजिए, 2 स्टंप क्यों नहीं, 1 स्टंप क्यों नहीं, 4 स्टंप क्यों नहीं, 3 स्टंप ही क्यों होते हैं। आप विराट कोहली को जाके पूछ लेंगे, वो जवाब दे पाएंगे? जिसने क्रिकेट का इन्वेंशन किया आप उनको जाकर पूछ लीजिए भैया क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों आपने सिलेक्ट किया, उनके पास भी किसी भी किस्म का उत्तर नहीं होगा। आप उनको पूछ लीजिए कि भैया क्रिकेट में 11 प्लेयर्स ही क्यों होते, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, कोई जवाब होगा? किसी के पास जवाब नहीं है। इसलिए इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, इतना इनक्विजिटिव आप मत बनिए कि आप जो फंडामेंटल्स है उस पर भी आप शंका करने लगे। स्वभाव आपका इनक्विजिटिव होना जरूरी है, लेकिन जहां पर फंडामेंटल्स है वहां पर आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी जगह पर आप
प्रश्न उठा उठाकर अपनी बुद्धि को आप संकुचित मत करिए। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। और देखिए, भगवान पर अटूट विश्वास रखना इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कभी भी दुख नहीं आएगा, आपको कभी भी कठिनाइयां नहीं आएगी, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि भगवान हर पल आपके साथ रहकर आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएगी, जितने भी संघर्ष आएंगे, भगवान हर पल आपके साथ रहकर आपको मदद करेंगे। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जितनी भी हसरतें हैं, जितने भी स्वप्न हैं, भगवान सभी पूर्ण करेंगे। क्योंकि कभी कभार हमारी हसरतें हमारे हित के लिए नहीं होती। इसलिए भगवान वो बखूबी जानते हैं हमारी हित के लिए जो होता है ना, वही वो करते हैं। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यही है कि वो जो करते हैं वो मेरे हित के लिए ही करते हैं। वो जो करते हैं वो मेरे हित के लिए ही करता है। ये विश्वास रखना, इसको हम विश्वास कहते हैं। मसले और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, कठिनाइयां जिंदगी की सच्चाई है। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं, खुशी है तो गम नहीं, और सुकून है तो दर्द नहीं। लेकिन खुदा ने ये वादा ज़रूर किया था कि यदि आप मुझ पर एतबार करोगे तो मैं आपको बखूबी हर कठिनाइयों से बाहर निकालूंगा। फूलों से यदि आप कांटों पर चलते रहेंगे तो आपको फूल मिलेंगे, और यदि आप विश्वास पर चलेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे। आप जिंदगी भर प्रयत्न करेंगे ना, फिर भी आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आप भगवान पर थोड़ा सा भी विश्वास करेंगे ना, तो भगवान उसी क्षण आपको सफलता में देंगे। जैसे आप औषधि लेंगे ना, जिस तरह थोड़ी सी औषधि अनेक भयंकर मर्जों को नष्ट कर सकती है, ठीक उसी तरह भगवान पर थोड़ा सा भी विश्वास अनेक भयंकर कष्टों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं कहना यही चाहता हूँ कि हैव staunch and stalwart faith in God, and you will definitely embrace success in your life. In the end, it was a magnanimous delectation being in front of all the Promethean, vivacious and dynamic students. I can vouch for you that if you implement today's session in your life would be absolutely metamorphosed, and I am absolutely unambivalent that you will at least implement one point in your life. In the end, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि may he bestow you the grit, fortitude and forbearance to scuffle all the impediments in your life. May Lord perpetually keep you guys bustling, booming and thriving. May the dauntless refuge of God perpetually keep you guys booming. Jai Shri Swaminarayan, Jai Shri Krishna and Jai Shri Ram.